Hi, this is Ronnie Kahi. Today I have with me a young writer, Prakhar Sharma. He is a BTech graduate but has chosen to be a writer to pursue his dreams. He didn't always want to be a writer, but when he failed to secure a good score in Hindi in class 12 board exams, he decided that this was the very language, that is Hindi, in which he's going to excel. So he decided to become a Hindi writer. And he started his journey on this popular self-publishing platform, Pratilipi. And, very recently, his book Beparwa has been published in print by Sarvam, which is a joint imprint of Pratilipi and the Right Order. So this book, Beparwa, is a young adult romantic tale. It's about the joys, the sorrows, the excitements, the challenges of young people in love. So, and it's an interesting book. So thank you, Prakha, for taking out the time for this interview. Hi, Miss Monica, and it's my privilege to join you in this interview. Thank you very much for uh, calling me. Thank you. I'm, I'm sure we'll have a nice time to Yeah, chatting. yeah, uh, definitely will have. Yeah. Okay. So the first thing that I'm interested in knowing is that you, of course, we know the background story, right? That you wanted to excel in Hindi because you didn't score well in class 12. But आपने ये decision कैसे लिया कि लेखक बनेंगे हिंदी में? Why not some other option? Why did you decide on writing? Because this had not always been your dream, right? तो कैसे फैसला कैसे लिया ये लेखक बनने का? It happened as you told after the 12th. I scored around 40 or 42 marks out of 80 in Hindi. बिफोर दैट मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि मेरी जो हिंदी है वो काफ़ी अच्छी है. During school time also in 11th 12th class when you know that there are some chapters in Hindi textbooks related to stories, articles and other things. तो वो जब वो रिसाइट होता था तो टीचर्स जो होते थे वो आपको जैसे खड़ा करके आपको बुलवाते, तो उस समय आपको एक कॉन्फिडेंस रहता था. जब मैं बोलता था टीचर्स भी दे यूज्ड टू प्रेज मी दैट you are a very bright student in Hindi. Your writing is also very good, and you can score good marks. Probably you can score highest marks in your school in board examination. तो उस समय ऐसा लगा कि हाँ अच्छी बात है, आप अच्छा कर रहे हैं. देन रिजल्ट आया. रिजल्ट वाज कंप्लीटली डिजास्टर for me. I haven't expected that I'll get only 50% marks in Hindi because the paper which I have paper was it was in uh, above average paper. For me, I was expecting more than 75% marks out of 100. बट तो फिर उस समय मुझे लगा. देन मैंने घर पे भी जब ये चीजें हुई तो आपको पता है पेरेंट्स ने ऐसे बोला कि नहीं, अब मार्क्स तो मार्क्स होते हैं. फाइनली स्कोर शीट से जो मार्कशीट पे तो मार्क्स ही वैल्यू रखते हैं कि वो कितने आए. देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई रियलाइज कि मेरी जो हिंदी है, मैं शायद अगर उसमें थोड़ा और काम करूँ तो मैं उससे अच्छा कर सकता हूँ. देन आई स्टार्टेड विद पोएट्री, नॉट फ्रॉम स्टोरीज. इनिशियली आई हैव स्टार्टेड विद पोएट्रीज. मैंने कुछ पोएट्रीज लिखी और फिर उसके बाद में जब मैंने उनको दिखाई मेरे फ्रेंड्स को तो उन्हें अच्छा लगा. तो उन्होंने बोला कि आप इसे किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जा, कि इसे किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर. तो मैंने फिर एक प्लेटफॉर्म पे उसे पब्लिश करी. देन तारीफ मिली. देन एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे लगा कि शायद पोइट्रीज जो है वो बहुत कॉमन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे भी पोइट्रीज बहुत ज्यादा कॉमन थी. और पोइट्रीज आजकल हर 12th के बाद वाला जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो किसी भी, भले वो लव में लिख रहा हो, गर्लफ्रेंड के लिए लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, पर वो पोइट्रीज लिख लेते हैं. मतलब इट्स वे टू कॉमन rather than you if you are writing stories, long stories like novels. So then at that particular time I decided that no, I think I should go towards the novel section. I should write one story. There was one idea that I conceptualized, and then I started writing stories. सो जब आपके 12th के ये ऐसा डिजास्टरस रिजल्ट आया जैसे आपने बताया, तो फिर आपकी मतलब आपने क्या किया? आपने रीचेकिंग वगैरह भी करवाई थी उसकी अपने 12th के रिजल्ट? मैंने रीचेकिंग मैंने नहीं करवाई थी, रीवैल्यूएशन करवाया था. हाँ, तो रिवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में आपको सिर्फ वो जो मार्क्स होते हैं वो इवैल्यूएट होते हैं, तो उससे कुछ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ. उस समय भी एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी. क्योंकि रिवैल्यूएशन में आपको जो एक सॉफ्ट कॉपी है वो अवेलेबल होती है फॉर एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस. तो वो सॉफ्ट कॉपी आई, मेल पर आई. एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने वो मेरे
पापा के लैपटॉप में ओपन की, तो सब घर वाले आ गए देखने के लिए कि ठीक है इसने ऐसा क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा मतलब ये कॉन्फिडेंट था एक तरीके से कि भाई अच्छा करेगा। देन उन्होंने उस कॉपी को देख के मुझे फर्स्ट चीज ये बोली कि यार ये तो राइटिंग ही अच्छी नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, उनका ये कोई कर्सिव नहीं है, ये एग्जामिनेशन हॉल है, 2.5 आवर का पेपर होता है, आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो आप वहां पर एक कर्सिव नहीं कर सकते। आपको उसी तरीके से एक पेस में लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग वाज नॉट इशू, बट मैंने जो देखा वहां पर वो ये देखा कि मेरा जो कंटेंट था शायद वो अप टू मार्क नहीं था। जो अच्छा। हम जैसे हमारे ऐसे होते हैं वो होते हैं, तो ऐसे में जब मुझे मार्क्स कम मिले तो उससे भी मुझे एक इंस्पिरेशन आई कि शायद मैं जो जैसे जो प्रोज जिसे हम कहते हैं, पोइट्री वाला सेक्शन मेरा ठीक था, बट प्रोज वाले सेक्शन में शायद मुझे लगा, वहां से भी मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि शायद मुझे, क्योंकि मेरे वहां पर मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो मैं एक ऐसी चीज लिखूं जो ऐसे फॉर्म में हो और वहां पर मैं एक्सेल करूं, तो शायद लोगों को यकीन हो जाए कि नहीं, वो रिजल्ट जैसा भी हो मैं कर सकता हूँ, अच्छा मेरे में है कैपेसिटी। और लॉन्गर पीसेस भी लिख सकते हो। हाँ 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 हाँ, लॉन्गर लिख सकता हूँ और अच्छा लिख सकता हूँ। हाँ। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, लोगों उसको पढ़ के बोले कि नहीं यार वो जो था दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट और हाँ। मिस हैपनिंग, बट यू आर वेल कैपेबल ऑफ राइटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। चलिए बढ़िया। सही मतलब अच्छा डिसीजन लिया आपने। आई थिंक कोई बोर्ड एग्जाम हो जाता है ये सब चीजें ना। जैसे मैं 10th में थी, तो इंग्लिश का मेरे साथ सेम चीज हुई थी, मतलब इतने खराब नहीं आए थे बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि मेरे बहुत ही बढ़िया आएंगे। तो आई गॉट 80। तो मैं तो बहुत रोई थी उस समय बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर। और मुझे लग रहा था कि मैं जिससे भी मार्क्स पूछ रही थी ना, मैं अपने स्कूल में मतलब टॉपर्स में से थी, तो जिनसे मार्क्स पूछ रही थी हर किसी के मुझसे ज्यादा थे। तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो सबसे ज्यादा लाने थे। व्हाई डिड एवरीबॉडी एल्स स्कोर सो हाई? तो मैं तो बहुत ज्यादा रोई थी अपने 10th के इंग्लिश के मार्क्स देख के। सो आई आस्क फॉर इवैल्यूएशन, लेकिन मुझे एक लेटर आ गया था घर पे कि जो आपको मार्क्स दिए गए दैट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तो फिर और मुझे तो लग भी ये रहा था कि मैं तो बहुत बढ़िया पेपर करके आई हूँ। तो स्टूडेंट को मुझे मैं समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ भी सेम यही हुआ, मैं भी जिनसे मार्क्स पूछ रहा था, इवन वो फ्रेंड्स जो कि मेरे से कम स्कोर कर रहे थे, उनके भी बोर्ड्स में उस हिंदी के अंदर मेरे से ज्यादा ही मार्क्स थे। तो जब कंपैरिजन होता था और गलती से पेरेंट्स को ये पता लग जाता था इधर मैं एक्स वाई जेड स्टूडेंट के इतने हैं, उसके पहले इतने थे, और तुझसे तो वो कि यार तुझसे तो देख वो भी उसके भी ज्यादा है, क्या क्या तूने पेपर में, और वो ये वो, तो होता है मतलब जब आप कॉन्फिडेंट हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए और फिर आपको लगे कि नहीं जो रिजल्ट आया हो या फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है उस समय। तो बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत बड़ी चीज होती है ना। अब हंसी आती है सोच के कुछ सालों बाद कि ऐसे कर रहे थे, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी चीज लगती है बोर्ड का रिजल्ट और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। अच्छा, तो लेकिन जब आपने चलो इंजीनियरिंग कर ली बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद, एंड आई थिंक चाहे पीयर प्रेशर हो या पेरेंट्स बोले, आपने वो देखा था एक बार ना कुछ सालों पहले ऐसे, जैसे वो कुछ जैसे नई नई चीजें आती रहती है फेसबुक पे, तो एक ऐसी चीज सर्कुलेट हो रही थी कि एक लाइन में हर कंट्री को डिस्क्राइब करो। तो उसमें ऐसे मतलब इंडिया का ऐसे मजाक उड़ाया हुआ था कि इन इंडिया एवरीबॉडी पीपल फर्स्ट बिकम इंजीनियर्स एंड देन डिसाइड व्हाट दे वांट टू बिकम। तो ये मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब पहले सब चाहे बाकी दोस्तों को देख के या पेरेंट्स के प्रेशराइज करने पे सब पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या सबके पेरेंट्स किसी ना किसी पॉइंट पर तो बोलते ही हैं कि तुम इंजीनियरिंग कंसिडर कर लो। एंड पर्टिकुलरली अगर लोग पढ़ाई में अच्छे हैं एंड इफ दे वांट टू टेक आर्ट्स या लिटरेचर लेना है, सो पेरेंट्स वुड नॉट, I mean they might not really protest but they are not very likely to like the idea, right? तो जब आपने डिसीजन लिया, बीटेक कर भी ली, उसके बाद डिसाइड किया कि राइटर बनेंगे, तो आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन रही? एक्चुअली इनिशियली जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पेरेंट्स को उस बारे में नहीं पता था अच्छा। और मैंने उनको बताया भी नहीं था। मतलब उस समय ऐसा नहीं था, जस्ट जैसे हम कहते हैं हॉबी, एक फ्री टाइम में अगर हमको कुछ लगता है कि हम कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं तो हम वो करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ टाइम के पर्टिकुलर बाद जब एक्चुअली प्रतिलिपि वाज नॉट द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टार्टेड राइटिंग, इट वाज सम अदर प्लेटफॉर्म, देन माय फ्रेंड सजेस्ट मी to write on Pratilipy because as obvious it is one of the best platform
for storytelling and story writing, no doubt about that. So then when I switched for story writing on Pratilipi, तो वहां पर मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। तो जब मुझे ऐसा लगा, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ पब्लिक प्रेजिंग मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो अब दिखाते हैं अपना काम। then after I think probably 8 or 9 months, after 8 or 9 month मैंने अपना काम दिखाया घर पे मम्मा को पापा को कि देखो ये मैंने लिखा है। तो उन्होंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद वो बोलते हैं कि ये कहीं से इंटरनेट पे से देखा है क्या? मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा मेरा खुद का है और वहां पर आप ऐसे लिखा हुआ किसी इंटरनेट पे से नहीं डाल सकते, कॉपीराइट इशू हो जाता है, मेरा खुद का है। तो बोले पक्का? तो मैंने बोला कि हाँ मेरा ही है। तो बोले नहीं ये इतना अच्छा तो लग तो नहीं रहा कि ये तूने लिखा है। तो फिर मैंने कहा इनका नहीं सीरियसली मैंने लिखा है, मैंने बकायदा मेरी प्रोफाइल ओपन करके दिखाई कि ये देखो ये कमेंट्स है, ये रेटिंग्स है मेरी आउट ऑफ 5 ये वो। तो उनको तब अच्छा लगा, फिर मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, जो एक मिसकंसेप्शन बन गया था उनके माइंड में वो शायद थोड़ा बहुत दूर हो रहा है। देन जब मैं काफी जैसे चीजें बढ़ती गई, अच्छा होता गया, मैं फॉलोवर्स भी बढ़ते गए वहां पर, तो फिर उसके बाद जब मैंने ये न्यूज घर वालों को डिस्क्लोज की कि वो मेरी बुक को पेपर बैक में छापना चाहते हैं, तो भी यही रिएक्शन था कि तेरी ही क्यों, कि मतलब इतनी अच्छी। मैंने कहा आप पढ़ो तो सही, जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ अच्छी है या नहीं, आप उसको आप पढ़। फिर उन्होंने पढ़ी तो बेपरवाह एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे मम्मा पापा ने फिनिश करी, मतलब पढ़ी पूरी, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि हाँ ये पेपर बैग में आ रही है। उससे पहले उन्होंने पढ़ी नहीं थी, वो बस जैसे देख लेते थे गो थ्रू कि हाँ भाई इसको अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, मतलब ये अच्छा लिखता है। तो फिर उसके बाद में अब जाके उनको थोड़ा लगने लगा है कि हाँ सीरियसली वो अब थोड़ा सीरियस हुए हैं कि हाँ ठीक है ये एक राइटिंग में एक एक्सेल गेन कर सकता है। चलिए बढ़िया। लेकिन मतलब कभी आपको, अगर आपने शुरू में नहीं बताया तो आपको हिचकिचाहट हो रही थी बताने में अपने पेरेंट्स को कि इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियर नहीं वर्क करना प्रोफेशनली? ये मैंने शुरू में बोल दिया बोल ऑन दिया? द वेरी, बिल्कुल शुरू में बोल दिया था मैंने। मुझे पता था कि आगे चल के मैं जितना डिले करूंगा शायद मुझे उतनी प्रॉब्लम। हाँ। तो इसलिए मैंने ये इनिशियली बोल दिया था कि मुझे इसमें कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब आई डू बीटेक, नो प्रॉब्लम इन दैट, आई एम वेरी कंफर्टेबल, बट आई वोंट कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। So I have done BTech from mechanical engineering department. I'm a mechanical engineer. तो मैंने तभी बोल दिया था कि आप प्लीज ऐसे मत करना कि आफ्टर थर्ड और सेवन, मतलब फोर्थ ईयर ऑन गोइंग में या थर्ड ईयर के बाद में आप इमोशनली, जो पेरेंट्स का होता है कि अब जब कर ही लिया है तो इस फील्ड में चले ही जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा था, मैंने कहा आप पहले क्लियर कर लो कि ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने तब बोला था अब कि हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, हम ऐसे फोर्स नहीं करेंगे। फिर फाइनल ईयर के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा इशू हुआ, स्टार्टिंग होनी शुरू हुई थी, पर मैंने वो रिमाइंड करवा दिया कि मैंने देखो बोल दिया था। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ नहीं, मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी। ग्रेट। ओके। अच्छा, आपने शेयर किया कि प्रतिलिपि पे आपने करना शुरू किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया आपको। तो आपने इसलिए वर्क्स आई थिंक प्रतिलिपि पे ऑलरेडी कर लिए हैं। तो ओवरऑल कुछ बताइए, क्या आपने एडवांटेजेस देखे हैं बिसाइड्स दिस फैक्ट कि आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता रहता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन कि योर वर्क इज गुड इनफ। और फिर आजकल ये लाइसेंसिंग डील्स भी मिल रही हैं प्रतिलिपि राइटर्स को, विच इज एन एडेड बोनस, चाहे वो ऑडियो बुक्स की हो या ऐसे प्रिंट वर्जन की हो। तो और इसके अलावा क्या एडवांटेजेस हैं आपको लगे इसमें प्रतिलिपि में? जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा आफ्टर एप्रिसिएशन जो मिल रहा है कि यहाँ पर पहले का तो जो इसका जो लिखने का मतलब, आप जब इस पर लिखते हो तो उसके बाद में जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर राइटर को एक्सेस करना बहुत ईजी है। तो जब हम, क्योंकि क्या होता है इन्होंने आप जब होम इंटरफेस पे जाते हैं प्रतिलिपि ऐप की, तो उसके बाद में आपको कैटेगरीज मिल जाती है। देन कैटेगरीज के अंदर आपको जो टॉप रेटिंग राइटर्स होते हैं उनके आपको अलग से नेम दिख जाते हैं। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी है, तो एक नए रीडर को जिसने लेटेस्टली प्रतिलिपि ज्वाइन किया उसके लिए आपको एक्सेस करना ईजी हो जाएगा। तो एज एन राइटर आप क्या चाहते हो कि आपको जो नया रीडर आ रहा है वो एक्सेस करे, क्योंकि उसके बाद में वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, आपको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो तो आपके कंटेंट पर है। पर अगर अगर एक्सेसिबिलिटी उसे मिल जाती है तो वो आप उसके लिए आप प्लेटफॉर्म को थैंक यू देना चाहोगे। तो मैं भी प्रतिलिपि को इसलिए थैंक यू देना चाहता हूँ। मुझे सबसे बड़ा कि जो एक्सेसिबिलिटी है इट इज कमेंडेबल। बहुत इजीली एक नया रीडर एक्सेस कर सकता है
उसके पास में चॉइसेस है, मतलब वो काफी आराम से कैटेगराइज कर सकता है कि वो किस फील्ड को, किस पर्टिकुलर सेक्शन या जैनर जिसे हम कहते हैं उसे पढ़ना चाहता है, और फिर उसके बाद में किसे फॉलो करना चाहता है। वो एक बहुत अच्छा इसके अलावा एक कॉन्टेक्ट फीचर जो कि प्रतिलिपि के अंदर है, आप मैसेज कर सकते हैं अपने राइटर को, कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है। तो उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि सपोज आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ मिल नहीं रहा आप प्रोफाइल पे, तो आप बकायदा राइटर से मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनकी क्वेरीज का या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। वो मेरे लिए फायदेमंद है, ताकि मेरी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है कि हाँ ये राइटर रीच में है, ये जल्दी से रिप्लाईज देता है, कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये दो फीचर्स बहुत, अब तक जितने मैंने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं कुछ उसमें यूनिक भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। तो लेट्स कुडोस टू प्रतिलिपि फॉर दैट। ओके, ग्रेट। आई थिंक बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं ना, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट आउट, ये एक बड़ा इशू होता है कि काम कर लिया, उसको पब्लिश भी कर लिया, चाहे सेल्फ पब्लिश करा या ट्रेडिशनल वे में पब्लिश करा, फिर उसके बाद विजिबिलिटी अचीव करने का और रीडरशिप गेन करने का। तो आई थिंक इसमें फिर ये काफी एडवांटेज है जो लोग फिर अभी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट एक बूस्ट मिल जाता है और उनका नाम बनने में जल्दी, मतलब उनको काफी सपोर्ट मिल जाता होगा इससे। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीचर। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं आपकी राइटिंग की। ठीक है, तो मैंने आपकी जो बुक पढ़ी बेपरवाह, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इट्स अबाउट यंग पीपल इन लव, राइट? सो इस बुक को या किसी भी बुक को जब आप लिखते हैं, डू यू कीप द रीडरशिप इन माइंड? मतलब आप ये सोचते हैं कि किस तरीके का कंटेंट लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी राइटिंग मोल्ड करते हैं, और डू यू गिव प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू योर क्रिएटिव इम्पल्सेस, या पहले सोचते हैं कि अगर अच्छा मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मे बी आई एम गोइंग टू गेट अ बेटर रिस्पॉन्स? सो डज दैट आइडिया ऑफ what will be the expected reception of a work, does that play a role in how you finalize a plot? आई थिंक इट्स अ कॉकटेल ऑफ बोथ, कि मेरी खुद की जो इंस्टिंक्ट होती है वो भी, और रीडर्स को क्या अच्छा लगेगा, क्या इस समय ट्रेंड है, या फिर क्या एक जो एक पसंद है, जो कि आप अगर लिखोगे तो रीडर्स ग्रैस्प कर लेंगे बहुत जल्दी। दोनों का मिक्सचर होता है। एज इफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हॉरर एक कैटेगरी है, वी नो कि हॉरर एक अच्छी कैटेगरी है, अट्रैक्ट करती है लोगों को पढ़ने में, लेकिन मैं हॉरर नहीं लिख सकता। ये एक मेरी लिमिटेशन है, मुझे पता है। मैंने ट्राई किया एक दो बार, मुझसे कोई रिक्वेस्ट भी आती है कि आपने सब कुछ कर लिया है। एक्चुअली मैं एक प्रतिलिपि पे कुछ उन राइटर्स में से हूँ जिसने कई सारी जेनर के अंदर राइटिंग करी। मतलब मैंने रोमांटिक्स भी लिखे हैं, मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी लिखा है, मैंने स्पाई थ्रिलर भी लिखा है, और उसके अलावा मैंने एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर भी एक 4 सेक्शन में लिखा हुआ है। तो अदर देन हॉरर मैंने लगभग लगभग सब कुछ ट्राई करा हुआ है। बट हॉरर की मुझे लिमिटेशंस पता है कि वो एक अच्छा जेनर है, उसे लोग ग्रैस्प करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, बट वो मेरी लिमिटेशन है। तो वो मैं ट्राई नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैंने देख लिया कि वो नहीं हो सकता। तो मैं दोनों का एक मिक्सचर कह सकते हैं कि आप जो जिसमें आप अच्छे हो आप अच्छा कर सकते हो, आपकी इनर सेल्फ बोल रही है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हो, और जो पसंद आएगा कि अभी क्या चल रहा है। जैसे रोमांस एक ऐसा ट्रेंड है जो बुक्स में हमेशा चलेगा। रोमांटिक नॉवेल्स कभी कभी खत्म नहीं होंगे, और वो हमेशा चलेंगे, लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना। तो वो एक ऐसा एक फील्ड है कि मुझे लगता है कि मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, और अभी तक अच्छी अप्रिसिएशन भी मिलती है। अच्छा, अच्छा, तो बेपरवाह के प्लॉट के बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे फाइनलाइज किया, क्या किया? आई थिंक मतलब वो काफी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे 10th 12th के अराउंड, जैसे लोगों के क्रशेस होते हैं या अट्रैक्शन होती है, एंड देन कॉलेज लाइफ में, सो मेनी ऑफ दोस थिंग्स आर सो रिलेटेबल कि आप ऐसे साथ बैठ के, मतलब और वो कॉलेज के कैफेटेरिया की डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, फ्रेंड्स आर गोइंग, और वो सब, तो इट्स लाइक जो यंग लोग हैं वो तो एंजॉय करेंगे ही, जो थोड़े बड़े हो गए उनको या मतलब और ज्यादा बड़े भी हो गए हैं, वो पहले पहले की बातें याद करके खुश होंगे। तो आई थिंक उस बुक में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लोगों को जिससे वो रिलेट कर सकें। सो जस्ट टेल अस समथिंग इन डिटेल अबाउट हाउ यू फाइनलाइज द पेपर प्लॉट, कैसे डेवलप किया उसे? For बेपरवाह I have completed one story, इश्का, that was also a romantic novel. तो जो उसका प्लॉट था वो बेसिकली वर्किंग एज सेक्शन पे था। मतलब वो जो स्टोरी थी वो एक टू टू फेज स्टोरी हम कह सकते हैं, कॉलेज लाइफ एंड देन पोस्ट कॉलेज लाइफ जो वर्किंग लाइफ होती है, उस पे बेस्ड थी। तो देन आफ्टर कंप्लीटिंग इश्का
I was not very interested in writing back-to-back consecutive romantic novels. That particular time, I was developing one idea related to mythological thriller, which I have completed later at the later stage. तो उस समय फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दो एक साथ रोमांटिक नॉवेल्स नहीं लिखते हैं, दूसरा स्टार्ट करते हैं. मैंने स्टार्ट किया भी, बट फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे मतलब एक आइडिया क्लिक किया कि एक ऐसी स्टोरी मैं लिख सकता हूँ, या एक ऐसा एग्जाम्पल जो स्कूल लेवल से शुरू हो और कॉलेज लेवल तक जाए. पोस्ट वर्क में दिखा चुका हूँ एक स्टोरी में, वर्किंग वाली स्टोरी, तो मैं वहां पर जाऊं. देन मैंने आइडिया डेवलप करना शुरू किया. इट वाज 2018. आई स्टार्टेड पेपर इन 2018 फरवरी आई थिंक, और 3 महीने लगे थे स्टोरी कंप्लीट होने में. एंड दैट पर्टिकुलर टाइम आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज. तो थोड़ा बहुत तो एक होता ही है, जब आप कॉलेज के अंदर होते हो तो कुछ सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्पिरेशन होती है जो आपको वहां से मिल जाती है. हाँ. बाकी स्कूल भी पास आउट किया ही है, सब देखा है चीजों के कि क्या होता है कैसे होता है, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी डेवलप की. एंड देन फिर बेपरवाह स्टार्ट हुई. देन वो जो माइथोलॉजिकल वाला जो मेरा आइडिया था उसको मैंने थोड़ा कोड पे डाला और बेपरवाह कंप्लीट की. तो आपने अच्छा बेपरवाह जब कॉलेज में थे तो उसी टाइम के अराउंड, उससे 1-2 साल पहले की चीजें याद करके लिखी. और बेपरवाह में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपने अपने खुद पे मॉडल किया हो या किसी को जानते हैं क्लोजली उस पे किया हो? टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल है. बट आई डोंट थिंक आई शुड नेम द कैरेक्टर. क्योंकि डेफिनेटली वो शख्स इंटरव्यू देख ले, मतलब देखेगा. मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ कि वो पर्सन इंटरव्यू देखेगा तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल रियल लाइफ इंसान पे बेस्ड है, रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है. मुझे पता नहीं, बुक पढ़ते हुए ऐसा लगा था कि कोई ना कोई शायद बेस्ड हो सकता है, या शायद आप खुद हो बुक में, तो मैंने सोचा पूछूंगी. हाँ, ये एक्चुअली ये सवाल मेरे से 20-25 बार पूछ लिया गया है अभी तक, ज्यादा ही पूछ लिया गया ऐसा है. लग रहा था बुक पढ़ के कि आप शायद खुद इनमें से कोई है, या शायद ऐसे किसी को जानते होंगे इनमें से. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसमें झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले में, क्योंकि इतने लोग पूछ चुके हैं कि ये बिल्कुल मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि हाँ, इट इज बेस्ड ऑन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन समवन. मैं नाम नहीं लूंगा, बट या इट इज बेस्ड ऑन समवन. और शायद सच्चाई ये भी है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखकर जो ये चीजें हुई, मतलब उसको देखकर मुझे ये एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं या एक आइडिया कह सकते हैं कि वो इतना लगा कि मैंने होल्ड पे डाला अपना जो दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैं कर रहा था उस पे काम. मैंने पहले बेपरवाह स्टोरी कंप्लीट की उसको करते हुए. तो बिल्कुल या है. चलिए ठीक है, अगर आपके लिए पंगा हो जाएगा तो फिर मत बताइए. अच्छा, लेकिन अच्छा एक मुझे ना चीज, इसमें एक कैरेक्टर वो जो था प्रियांश, जैसे वो मतलब दिखाया है कि ही इज यंग बट ही इज सॉर्ट ऑफ मैच्योर फॉर हिज इयर्स, राइट? जैसे वो दूसरों को सलाह देता है या जिस तरह की वो बातें करता है, जैसे वो लेखक है. तो उसका जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उसके कुछ पेजेस बाद ही वो कहता है कि जो लेखक होते हैं वो लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं और साइकोलॉजिस्ट नहीं होते. तो आपने काफी सारी कहानियां लिखी हैं, आप बताइए, आप पढ़ लेते हैं लोगों के चेहरे? अब ये जो पर्टिकुलर लाइन थी ना, ये मेरी थिंकिंग है. ये ये क्या? बाकायदा सॉरी. ये मेरी ही थिंकिंग है. अच्छा. मेरा ही थिंकिंग है, ये मेरा बिलीफ है कि हाँ ऐसा होता है. मैंने वो प्रियांश का एक जो जो आपने जो डायलॉग बताया, जो उसकी जो वो बोलता है एक उसका, तो ये मेरी थिंकिंग है कि हाँ ऐसा कर लेता है. इसका एक रीजन है कि जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं एज एन सीरियस राइटर, नॉट अ टाइम पास, मतलब जब हम एक प्रोफेशनल नहीं, बट हाँ एक सीरियसली जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं राइटिंग के अंदर स्टोरी, तो उसके बाद में एक फेज ऐसा आता है कि तब हम राइटिंग से, जैसे हम कहते हैं कि प्री राइटिंग फेज और पोस्ट राइटिंग फेज, उसमें जो ऑब्जर्वेशन लेवल होता है हमारा, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाता है. कोई राइट. दूसरा आदमी, हम 4 लोग बैठे हैं, फ्रेंड्स हो या कोई भी रिलेटिव हो, वो किस तरह से बात कर रहा है, उसको हम किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो प्री राइटिंग फेज में हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग हम ऑब्जर्व करते हैं पोस्ट राइटिंग फेज में. कि हाँ यार, इसके फेस एक्सप्रेशन से ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या मतलब जैसे 4 दोस्त मिल रहे हैं तो लंबी लंबी जिसे कहते हैं हम फेंक रहा है कि कुछ भी कर रहा है. तो वो एक ये एबिलिटी आ जाती है राइटर में. उसे उसे हर जगह लगता है कि उसे कंटेंट कहीं से भी मिल सकता है, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है.
तो वो ऑब्जर्व, जो उसका ऑब्जर्वेशन पावर है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, तो नेचुरली एनहेंस होना शुरू हो जाती है डे बाय डे जब हम करते रहते हैं। तो उसको देख के मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि राइटर्स आर ऑल्सो नो लेस देन साइकोलॉजिस्ट, वो भी आपका चेहरा पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। तो फिर मैंने वही लाइन वहां यूज करी प्रियांश के डायलॉग में। हाँ, बट ये मतलब बात तो है ही कि चाहे वो राइटर्स हो या जो आर्टिस्ट भी होते हैं जैसे पेंटर्स वगैरह, दे ऑब्वियसली आर वेरी एक्यूट ऑब्जर्वर्स। तभी वो इतने डिटेल में देखते हैं, तभी वो इतनी डिटेल में वो चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू हो या आर्ट के थ्रू हो, पेंटिंग, स्कल्पचर, व्हाटएवर। सो वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, अभी जैसे आपको 3 साल ऑलरेडी हो गए हैं लिखते हुए, राइट? एंड यू ऑलरेडी पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ वर्क्स। So, आगे क्या प्लान है? Like, what are you planning to do? If you think about your career, say 10 years down the line, where are you seeing yourself? अगर आप ये सवाल मेरे से कोई 1 साल पहले पूछता तो मैं ये बोलता कि जस्ट फॉर फन, की जिसे कहते हैं ना हम कि गो विद द विंड, कि जैसा चल रहा है वैसा हम चलने देते हैं। बट आज अगर हम, आज आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं खुद को 10 साल बाद में एक रिनोन राइटर के तौर पे देखना चाहता हूँ। बिल्कुल अब मैं चाहता हूँ, 1 साल पहले मैं नहीं चाहता था। बट अब क्योंकि ये जो एक तो रिकॉग्निशन, ऊपर से आपका, आपकी पब्लिशिंग स्टार्ट हो गई है आपके वर्क की, आपको एक एडवांस लेवल जिसे कहते हैं, अप्रिसिएशन Right. मिलना शुरू हो एडवांस लेवल पे। तो इसलिए अब मैं ये, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये एम्बिशन, मैं एक एम्बिशन है कि मैं आज से 10 साल बाद में चाहता हूँ कि मेरी कम से कम 3 से 4 पेपर वर्क पब्लिश्ड हो। और टू बी ऑनेस्ट, 1 से 2 वेब सीरीज भी बन जाए तो बहुत ही अच्छा है इन सालों के अंदर, क्योंकि वो कंटेंट है। मुझे ऐसा विश्वास है, ये मेरा बिलीफ है, और ये मेरा पेपर बैक में आने से पहले से बिलीव था कि ये जो मैंने लिखा है ये ऐसा है कि इस पे एक अच्छी वेब सीरीज बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे वेब सीरीज भी बन जाए, और कम से कम 3 से 4 मेरे वर्क हैं, नॉवेल्स हैं, वो पब्लिश्ड हों। तो ये मेरा बिल्कुल, ये मैं चाहता हूँ कि आज से 10 साल में देखता हूँ। हाँ, मैं फुल टाइम राइटर बनूंगा नहीं बनूंगा इसको लेके मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। बट राइटिंग में कंटिन्यू करूंगा, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू करूंगा। और जो मेरा जो मेरा वर्क है, मतलब जो मैं उसके अंदर जो मेरी क्वालिटी एनहेंसमेंट जिसे हम कहते हैं, वो मैं और सुधार करता रहूंगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो फुल टाइम राइटर मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, बट राइटिंग आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू। Yeah, so you're planning on continuing. या That's a great thing, and good wishes to you for that. Uh, Anything else that you'd like to share? Anything about your work or your experience so far? आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट, क्या होता है कि ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी ये देखते हैं कि जो राइटर लिख रहा होता है, इन द सेंस, ठीक है, वो उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तरीके से, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जो कैरेक्टर्स होते हैं एक नॉवल के, वो एक राइटर के बच्चे की तरह होते हैं। वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो उसने डेवलप किए हैं, उसने अपने माइंड से सोचा है। तो वो उसी की, उसके बच्चों की तरह होते हैं, वो खराब हो चाहे सही हो। लेकिन उनसे राइटर को रिलेट करना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं ये उनकी एक आदत हो जाती है। मुझे भी ऐसा बोल जाती कि आप तो, हम तो आपको वो इमेजिन करके सोच के पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एक राइटर के लिए। क्योंकि आप ये, कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैसेज मेरा ये है कि आप राइटर के कंटेंट को पढ़िए, उन्हें जितनी रेस्पेक्ट देते हैं दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लिखते हैं और अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। पर प्लीज हमको उन कैरेक्टर से, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनसे कंपेयर मत कीजिए कि हाँ ये जैसे ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, लाइक प्रियांश, प्रियांश का मेरे से कंपैरिजन होता ही है हर जगह, कि लोग सिमिलरिटीज मुझे गिनाते हैं कि देखो वो भी यंग है, वो भी राइटर है। और जब मैंने पब्लिश का प्रतिलिपि पे डाला कि मेरा पेपर बैक सेलेक्ट हुआ है, तो कुछ लोगों ने मुझे बकायदा ये मैसेज किया कि आपको पता है कि यही क्यों सेलेक्ट हुई आपकी स्टोरीज में से, क्योंकि ये आप पर बेस्ड है। मैंने कहा नहीं, ये मेरे पे बेस्ड नहीं है तो अच्छी बात है, बट प्लीज, जो एक होता है ना कंपैरिजन, तो प्रखर शर्मा, राइटर प्रखर शर्मा, ये भले ही आदमी एक ही हो लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। तो उसको आप मेरे स्टोरीज के कैरेक्टर से कंपैरिजन करना, मैं मानता हूँ कि मेरा कंपैरिजन स्टोरी के कैरेक्टर से करना, ये नहीं करना चाहिए बस। और
कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें लोग देखेंगे तो ये उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत बोलता भी है और ये आज भी दोबारा बोल रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि अगर कोई आपको एक स्टोरी में प्रियांश मान रहा है, कोई दूसरी स्टोरी में वो कहे कि यहाँ तो तुम बिल्कुल अलग बन गए, हाँ पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वही वही बिल्कुल। तो वो ये कि और फिर हो सकता है कि उस चीज से ना मतलब मेरे बारे में भी नेगेटिव वो आ जाए कि यार यहाँ पर तो ऐसे हो गए, यहाँ पर तो ये कैरेक्टर ऐसा है, अभी ऐसा हो गया, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। एक राइटर को एक राइटर की तरह आपको पढ़ना चाहिए। और हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है कि जब एक राइटर कोई कैरेक्टर लिखता है, पॉजिटिव कैरेक्टर, तो उसमें वो अपनी कुछ कुछ आदतें जरूर डालेगा कि कुछ चीजें जैसे वो ये करता है तो वो उस चीज को इम्प्लाई करेगा। प्रियांश की 40% आदतें बिल्कुल वही है जो मेरी है, और ये नेचुरल है। कोई भी कैरेक्टर मैं लिखूंगा तो उसमें कुछ आदतें मैं ये डालूंगा जो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, वो मैं उसमें इम्प्लाई करने की कोशिश करूंगा। कुछ सिमिलरिटीज तो होना जिसे कहते हैं ना, मतलब यूजुअल है, बहुत कॉमन सी बात है कि ऐसा होगा। पर अगर आप ये सोचो कि ये तो हूबहू एग्जैक्टली कॉपी है आपके कैरेक्टर की, प्रियांश इज प्रखर और प्रखर इज प्रियांश, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है सही। हाँ जैसे ना मतलब यूजुअली आई थिंक जब लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिश राइटर्स के लिए भी ये ट्रू है कि उनकी कई सारी डिफरेंट नॉवेल्स में जैसे कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स तो होंगे, कुछ उनकी लाइफ के इंसिडेंट से सिमिलर, कुछ उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलर, कोई उनके लव अफेयर से सिमिलर। बट हाँ, इट माइट नॉट देयर माइट बी सम एलिमेंट्स व्हिच आर ऑटोबायोग्राफिकल, बट इट डजंट नेसेसरली autobiography itself. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay. Thank you, Prakhar, for joining me. It was a great pleasure talking to you. And whoever wants to check out the review for Beparwa, I'm adding the link in the description box. I'll be posting it on my book review blog, and the links for the book Beparwa are also there in the description box. If you enjoyed watching this video, please do like, share, and subscribe. Thank you.